sharing with you PDF. Yeah, you will come to know कि I have shared a PDF and this PDF is about whom? This PDF is about Percy Bysshe Shelley, जो आज मैंने सुबह में क्लास लिया हुआ था. So there are some important questions. Those who are attending this class, they can understand. Yeah, they have to go with the point कि this class is highly significant and this class is highly significant for those who are preparing for GIC lectureship. Yeah, those who are preparing for some GIC lectureship. Yeah, PGT, and you will come to know even for UGC net, those who are preparing for UGC net, if the question comes related to this poet, they can go with this point कि क्या क्या रहा है. कुछ मैं मार्क करता हुआ चल रहा हूँ, कुछ चीजें आपको खुद ब खुद यहाँ पे समझना है कि जस्ट अंडरस्टैंड कि जो पर्सी बायशी शैली है, ये पीबी शैली का फुल फॉर्म पर्सी बायशी शैली, a well-known romantic poet and the best lyricist of English literature. ये चीजें मैंने आपको बताया था. A well-known romantic poet and the best lyricist of English literature. Number 1 point. Number 2 point, you will come to know that he had a revolutionary thought. What did I tell you? I just told you he had a revolutionary thought. उनका जो thought था वह revolutionary thought था. Even you will come to know he was expelled from university for writing a pamphlet that was the necessity of atheism. You will come to know इसका इसका अपना एक point रहा है. और उससे related जो heads हैं, the particular heads of points given here, I'm going to read and highlight जो आपको समझना है. So in this class we are taking what? In this class we are taking PB Shelley, and that is highly significant कि PB Shelley, he was born in 1742, died in 1822. 1742 में उनका जन्म हुआ, 1822 ईस्वी में मौत हुई है. शेली जो है, उन्होंने किताब लिखा था शेली इन अ डिफेंस ऑफ पोइट्री, राइट्स that poetry is the record of the best and happiest moments of the happiest and best mind. It's a definition given by whom? Given by पीबी शेली इन हिज क्रिटिकल एसे अ डिफेंस ऑफ पोइट्री. और उन्होंने कहा कि पोइट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड. So remember that if the question is asked who said this, this statement was given by whom? This statement was given by P.B. Shelley. Second important point I would like to tell you, when you talk about romantic poets, especially romantic poets, you come to know that there were some popular romantic poets. One was who? One was William Wordsworth. And William Wordsworth ने क्या कहा था पोइट्री के बारे में कि पोइट्री इज द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर. Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotions recollected in tranquility. So in the series of the definition of poetry, you have to add this definition also. And what the definition has been given, Shelley ने जो definition दिया है, a defense of poetry नाम का अपना critical essay में, और उसमें उन्होंने कहा कि poetry is the record of the best and happiest moments of the happiest and best minds. जो जिंदगी के सबसे खुशनुमा पल होता है, खुशनुमा लम्हे होते हैं, या उसका जो है पोइट्री में रिकॉर्ड किया जाता है. और माइंड भी उस समय जब एकदम से प्रफुल्लित, इफ आई यूज द वर्ड, उस समय की चीजों की जो 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 थॉट निकल करके आते हैं पोइट्री के रूप में, पोइट्री उसी को रिकॉर्ड करता है. His life and work illustrate romanticism in extremes, extreme of ecstasy and extreme of despair. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने सुबह की क्लास में डिस्कस किया था when I was live, when I was interacting with you regarding Shelley, and I told you that he had revolutionary thought, and I also told you कि उनका जो विचार है वह क्या है, एक्सट्रीम ऑफ एक्सटेसी एंड एक्सट्रीम ऑफ डिस्पेयर, दोनों चीजें आपको मिलेगी. मैंने बताया था कि उनमें ऑप्टिमिज्म भी है और पिसिमिज्म भी है. एंड द सेम थिंग यू फाइंड हियर, एक्सट्रीम ऑफ एक्सटेसी, जॉय की भी एक तरह से अगर कहा जाए कि प्रकाष्ठा है, एक्सटेसी भी है, और एक्सट्रीम ऑफ डिस्पेयर है, डिस्पेयर भी आपको देखने को मिलेगा. दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है. किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही इस तरह से समझने में?
I okay, okay, okay. Uh, I want to know the response of 1 or 2%. More response. 1 or 2%. Okay, 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 okay. You will come to know there is the third point. He was expelled from Oxford University with his friend Thomas Jefferson Hawke. एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूजीसी नेट पे आ चुका है कि उनको उनके किस दोस्त के साथ यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया गया था, टॉमस जेफरसन हॉग, because they wrote a pamphlet titled The Necessity of Atheism विच चैलेंज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये सुबह में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, इस टाइम भी बता रहे हैं कि उनको उनको जो है कहाँ से, यूनिवर्सिटी से, कौन सी यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। किसके साथ? उनके अपने दोस्त थे टॉमस जेफरसन हॉक। टॉमस जेफरसन हॉक के साथ, फॉर व्हाट? फॉर राइटिंग दिस पैम्फलेट द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, नेसेसिटी ऑफ एथिज्म लिखने की वजह से। He was also in close touch with John Keats, whose death in 1821 inspired him to compose Adonai. A very important question for TGT, PGT, GIC lectureship, and for everyone. You will come to know that there is an elegy, and this elegy is written by whom? This elegy is written by P.B. Shelley, and the title of that elegy is Adonai. You will come to know that it was written when it was written in 1821 in the memory of John Keats, when John Keats died. जब जॉन कीट्स की मौत हुई थी तब इसको लिखा गया था। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखेंगे कि जब उसको उस समय वहां पे लिखा गया था तो उसके लिखने के 1 साल बाद इनकी भी मौत हो जा रही है। He was born in 1742 and died in 1822, and the same thing you find here. That is the death of John Keats in 1821, one of the most youngest poets of English literature who died in the prime age of his life. So you find this point here also. Now the next point is on 8th July 1822, 8 जुलाई 1822 ईस्वी को a sudden storm on the Gulf of Spezia drowned him. This is a very important fact. ये चीज पीजीटी में पूछा जा चुका है कि उनकी मौत कैसे हुई है। उनकी मौत डूबने से हुई है। किसकी मौत? पीबी शैली की मौत। कब हुई है? 8 जुलाई 1822 ईस्वी को। अ सडन स्टॉर्म, जब वो जो है कहाँ पर थे, एक तरह से इफ आई यूज द वर्ड की जर्नी वाइज में थे, तभी एक स्टॉर्म आता है और उसमें उनकी शिप जो है डूब जाती है, जो भी बोट वगैरह से वो जा रहे होंगे। तो यू फाइंड दैट इज हियर। Macdonald described him as a beautiful and ineffectual angel, being breathing in the wide his luminous wings in vain. This is what this is a statement. What this is a statement given by whom? Given by Matthew Arnold about whom? About this man. कि what कि एक तरह से एक एंजल जैसा, ब्यूटीफुल एंड इनइफेक्चुअल एंजल बीइंग इन द वाइड ऑफ हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन, जो व्यर्थ में अपने पंखों को फैला करके दुनिया को जो है खूबसूरती का संदेश, दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये चीज उनको लिए जो है किसने कहा? मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा। एंड दिस स्टेटमेंट हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम, ब्यूटीफुल एंड इनइफेक्चुअल एंजल beating in the wide his luminous wings in vain. Benjamin Disraeli created a Shelleyan protagonist in his novel Venetia. That's a very important point. Benjamin Disraeli जो एक बहुत बड़े नॉवलिस्ट रहे हैं, उन्होंने अपनी एक नॉवेल में जो है एक शेलियन जैसा कैरेक्टर लाया, और वो कैरेक्टर क्या है? प्रोटेगोनिस्ट है, सेंट्रल कैरेक्टर है, छोटा मोटा कैरेक्टर नहीं। वो कौन सी नॉवेल है? वेनितिया। And it happened in 1837. So you will come to know that Benjamin Disraeli created a Shelleyan protagonist in his novel Venetia, 1837. Robert Browning, in his early poem Pauline, addressed Shelley as son treader, son treader. रॉबर्ट ब्राउनिंग ने उनको अपनी पोएम पाउलिन में कैसे एड्रेस किया है? सन ट्रीडर के रूप में एड्रेस किया है। शुड आई हाईलाइट इट, या आपको नॉर्मल फॉन्ट में ही समझ में आ रहा है? या जस्ट आई वांट टू नो कि जब मैं इस पे एक तरह से रब कर रहा हूं, तो यू फाइंड दैट द इट्स हाईलाइटिंग, शुड आई हाईलाइट दीज पॉइंट्स, या नॉर्मली जो प्रिंट है वो आपको समझ में आ रहा है ज्यादा बेहतर? ओके, ओके, ओके।
Bernard Shaw admires Shelley's extremism and vegetarianism. Bernard Shaw, you know it very well, a well-known dramatist of modern age, especially he comes in the category of what? Anti-romantic कॉमेडी के जो प्लेस है उसको उन्होंने लिखा है जिसमें यू हैव ऑलरेडी रेड आर्म्स एंड द मैन कैंडिडा उनका प्ले रहा है मिसेस वारेंस प्रोफेसर रहा है एंड ही इज आल्सो प्रिस्क्राइब्ड इन जीआईसी लेक्चरशिप में तो बर्नार्ड शॉ ने शेली को क्या कहा शेलीज उसकी एक्सट्रीमिज्म को और उनके वेजिटेरियनिज्म को एडमायर किया हुआ एक्सट्रीमिज्म एंड वेजिटेरियनिज्म अल्फ्रेड टेनिसन फेवर्ड शेली टू बायरन अल्फ्रेड टेनिसन ने फेवर किया था शेली टू बायरन विलियम माइकल रोसेटी edited Shelley's works and added a memoir. These are not important, but you have only hear what I'm saying. कि विलियम माइकल रॉसिटी जो करके थे विलियम माइकल रॉसिटी एडिटेड शेलीज वर्क्स एंड एडेड अ मीमायर उन्होंने शेली के वर्क को एडिट किया और उसमें एक मीमार जो है मीमार इन हिंदी दैट इज संस्मरण यू नो इट वेरी वेल द ईयर 1812 was a significant in his life as he met his icon William Godwin. सुबह भी मैंने जिक्र किया था कि उनके जो आइकॉन थे वो कौन थे उनके आइकॉन विलियम गॉडविन थे इफ आई से कि एक आइडियल फिगर और उस आइकॉन से इनकी मुलाकात 1812 में होती है और यू विल कम टू नो मैंने बताया था कि उनका जो थॉट था बहुत ही रेडिकल पॉलिटिकल फिलोसोफर एंड द ऑथर ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस this thing has been asked. You will come to know कि William Godwin, a political thinker, William Godwin, a philosopher, he wrote a book, a very nice book, and you will come to know that book was what that was, book was Political Justice. And in this book, you will come to know he has told the significance of political freedom in the life of a man. And also you will come to know कि one thing happened कि विलियम गॉडविन की जो बेटी थी जिसका नाम था मेरी गॉडविन शेली उसके साथ इलोप कर गए थे तो इस तरह की जो है चीजें आप पाते हैं कि शेली वाज बोर्न इन 1742 डाइड इन 1822 जस्ट आई वांट टू नो कि शेली ने इसमें ये कहा कि पोइट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स कोई भी डिफेंस ऑफ पोइट्री उनके लाइफ में और उनके वर्क में या आप ये देखते हैं कि देर आर द टू इम्पोर्टेंट थिंग्स एंड व्हाट वर दोज थिंग्स यू फाइंड टू इम्पोर्टेंट थिंग्स इन हिज वर्क्स एंड व्हाट वर दोज थिंग्स in his life and in his works also extreme of ecstasy and extreme of despair yeah for what he was shubham ji please mute yourself shubham ji please mute you will come to know that there is another question ki he was expelled from Oxford University for writing what the necessity of atheism and his friend was also expelled what was the name of his friend yeah exactly Thomas Jefferson Hall next question I want to know ki who has written Edelweiss Shelley in yeah, yeah Fawkes yeah, in the memory of John Keats in 1821 Shelley died which year 1822 did he commit suicide yeah he was drawn yeah he was drawn he didn't commit suicide and there is a critic who said about P.B. Shelley, beautiful and ineffectual angel beating in the Matthew or not. Matthew or not. Just next, who wrote Political Justice? William Godwin. William Godwin. And William Godwin, a significant, you can say, he's yeah, political thinker, philosopher. William Godwin, political thinker, philosopher, wrote Political Justice. What was the name of his daughter with whom he eloped? Mary God. Mary Godwin. Yeah, Shelley eloped with her. Yeah. Now the next point, when you come to know about who called this man son Treader, who called P.B. Shelley's son Treader, Robert Browning. In which poem? In which poem? Yeah, Pauline.
Pauline. Yeah, Pauline. You will come to know that is what that is the Pauline. And other thing, ki GB Shah admired Shelley's for two things. What was that? Vegetarianism. Yeah, I think कि now what did I tell you in this slide जो बताया गया उसको आपने कवर भी कर लिया और मैं दोबारा उसका रिवीजन करा दिया. Now the next slide you are getting here. Now it's about whom? It's about his work. The necessity of atheism 1811 means 1811 11 में a prose pamphlet by P.B. Shelley and his friend T.J. Hawke, Thomas Jefferson Hawke. So you will come to it was written by whom? It was written by these two personalities P.B. Shelley and Thomas Jefferson Hawke. Published anonymously. उस समय जब ये पब्लिश हुआ था anonymously it came of at Oxford in 1811 1811 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड में ये पब्लिश हुआ था लेकिन इनके नाम के साथ पब्लिश नहीं हुआ था बल्कि कैसे एनोनिमसली they were both expelled from the university for circulating the work to heads of college for circulating the work to heads of कॉलेज इस वजह से उनको जो है इस उन्होंने इसको सर्कुलेट किया और जो हेड्स ऑफ कॉलेज थे वहां तक उनको दिया और एक हॉट डिस्कशन प्रोफेसर से भी हुआ था दिस इज वाई देवर expelled क्योंकि if you talk about the necessity of atheism it means that you are raising question against the belief of the people especially the religious belief because the people believe in church they believe in god they believe in temple they believe in religious book so if you are writing such a type of pamphlet it means that you are against the belief of the people and you are asking the question raising question who is god what is the shape of god what is the size of god you are asking question related to the existence of god this is why you find these things and you will come to know that he and his friend Thomas Jefferson they were just expelled from where from university. Uh, it is probably the first published statement of atheism in Britain. It's also a very important point कि शायद यह पहला जो है वर्क था जो एथिज्म से रिलेटेड है ब्रिटेन में एथिज्म से रिलेटेड चीजें मतलब नास्तिकवाद से और अगर ये बात कहा जाए कि शायद इसके पहले इस तरह का कुछ नहीं लिखा गया था इट इज प्रोबेबली द फर्स्ट पब्लिश्ड स्टेटमेंट ऑफ एथिज्म इन ब्रिटेन अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म 1811 ईस्वी में आया किसने लिखा पीबी शेली ने लिखा उनके दोस्त थॉमस जेफरसन हॉग और इसको जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एनोनिमसली पब्लिश किया गया इट वाज सर्कुलेटेड टू द हेड ऑफ द कॉलेजेस एंड यू विल कम टू नो कि लास्ट में जो है they were expelled from university and perhaps is the first published statement of atheism in Britain. Now the next work is Queen Mab 1813 में आया earliest effort immature a visionary and ideological poem. Now the third point is very important. What is Queen Mab? जी जी madam madam you don't write because as the lecture is going to over you will get the pdf file और उससे ज्यादा बेहतरीन कुछ नहीं होगा जो चीजें यहाँ पे आप अंडरलाइन कर रही है लेक्चर भी कहीं नहीं जाएगा रिकॉर्डेड है दोबारा सुन के आप अंडरलाइन कर लीजिएगा नथिंग इज वाई यू विल मेक एनी अदर बस इस समय केवल क्योंकि ये जो है इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना डिकेंस थे डिकेंस के नॉवेल को समझाने में आप खुद समझ सकते हैं कि उसका एक बार पढ़ करके फिर मैंने वर्ड्सवर्थ कैरेक्टर एनी हाउ मैं आपको बताया यहाँ पे एक फैक्ट है इंफॉर्मेशन है जो आपके सामने है एंड यू विल गेट द पीडीएफ फाइल यू हैव टू नोट डाउन वहीं पर आपको करना अलग से एफर्ट नहीं करना कोई ओके ओके और किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जो है अपनी बातें रख रहा हूँ सामने वाले की ना सुन रहा हूँ आई एम गोइंग वेरी फास्ट ओके ओके बट रिमेम्बर दैट कि मैं चीजों को मैं अभी जब क्वेश्चन आपसे हर स्लाइड पे क्वेश्चन पूछूंगा तो उससे वो होगा और मैं अपनी रफ्तार थोड़ा सा स्लो करूंगा ठीक है दैट्स गुड अ विजनरी एंड आइडियोलॉजिकल पोएम यह पोएम कैसी है विजनरी और आइडियोलॉजिकल पोएम है written in the irregular unrhymed meter how did it write it is written yeah it was written in irregular unrhymed meter that was made पॉपुलर बाय रॉबर्ट सदे जो कि रॉबर्ट सदे के द्वारा पॉपुलर बनाया गया था द पोयम इज इन 9 कैंटोज पोयम कितने कैंटोज में है 9 कैंटोज द पोयम इज इन 9 कैंटोज अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि देयर इज क्वीन मैब 1813 में आई है
यह विजनरी और आइडियोलॉजिकल पोयम है। यह इरेगुलर अनराइम्ड मीटर में है और इसको पॉपुलर किसने बनाया है? रॉबर्ट सदे ने बनाया है। कितनी कैंटोज में है? 9 कैंटोज में है। नाउ द नेक्स्ट वर्क इज एलास्टर। इसी का सब टाइटल है आर द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, 1816 में आया है। या क्या? इट्स द स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। लॉन्ग पोयम किसमें लिखी गई है? ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, फॉर्मलेस है। इट्स आल्सो अ विजनरी पोयम, largely written in Windsor Great Park in the late summer of 1815, published in 1816. Elaster is a translation, जो Elaster poem है, a transliteration from the Greek meaning the whale, the evil spirit or demon of solitude. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय एलास्टर? ग्रीक है वर्ड और एक ग्रीक से इंग्लिश में इसका मतलब होता है इविल स्पिरिट, एक बुरी आत्मा, और डेमन ऑफ सॉलिट्यूड, या जो है सॉलिट्यूड का डेमन, अकेलेपन में जो आदमी जिंदगी गुजारता है, उस समय का जो सिचुएशन होती, जो नेगेटिव ख्याल आता, अगर कहा जाए तो एलास्टर वही एक तरह का डेमन है। मैं फिर से जानना चाहता हूँ कि हु रोट द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म? या and when did it publish? Jefferson, Thomas Jefferson. You will come to know when did it publish? Eight, 1811. Did it publish with the name of the author? No. Yeah, it was an anonymous work. Yeah, anonymously. It was an anonymous work. It didn't publish with the name of the author, and it published at Oxford 1811. And what was the reason? Why were they expelled from the university? Eth- Atheism. And you will come to know ki what do you find in this pamphlet? Yeah, no need of God. Yeah, it was against the God. Yeah, against God. Questions were asked, questions were raised. Means the people were believing in God. Then in this key, what is the need to believe in God? What is the need of church? What is the need of the Bible? All these things we find. Then this is necessity of atheism. Then the next work is Queen Mob. It when did it publish? 1813. And what type of poem is it? What type of poem is it? Third point, you can just see a visionary and ideal. My voice is breaking. Yeah. Okay. Now this time, how do you find it? This time, hello. Okay. Now it's coming. Okay. Now just I want to know ki Queen Mab. It's an important work. 1830. It's a visionary and ideological poem. It's written in irregular, unrhymed meter. Who made it popular? Now there is another work that is what that is and Queen Mob is in how many cantos? 9 cantos. There is another work, Elasta or the Spirit of Solitude. It came in 1816. It's what? It's what? या ये पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, विजनरी पोयम है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय एलास्टर? Yeah, yeah, evil spirit or demon of solitude. Now you can just see the next slide, and here you will come to know जो spirit or demon of solitude इसी से related है कि who pursue the poet to his death because he will not be satisfied by domestic affections and human sympathy.
The work is closely associated with Shelley's prose essay on love and on life. शेली का एक प्रोज एसे है जिसका मतलब क्या है, ऑन लव एंड लाइफ। यू विल कम टू नो कि इससे वह रिलेटेड रहा है। थॉमस लव पीकॉक सजेस्टेड द टाइटल, this particular statement is left there, this statement is left here, so you will come to know कि थॉमस लव पीकॉक सजेस्टेड द टाइटल, उन्होंने सजेस्ट किया कि जो टाइटल है वह जो है क्या है। सबको कहाँ जाएंगे, इसको जनरेट करवाना, ठीक इतना गर्मी है खोले नहीं। तो यू विल कम टू नो कि वहां पे एक और पॉइंट नजर आता है कि ये मैं थॉमस लव पीकॉक, अभी 10 मिनट बाद थॉमस लव पीकॉक है, थॉमस लव पीकॉक ने इसको जो है ये कहा कि सजेस्टेड द टाइटल नार्सिस्टिक, ये जो वहां पे गया हुआ है ये चीज यहाँ पे दोनों मोबाइल, हाँ यू विल कम टू नो इसको उन्होंने क्या कहा, नार्सिस्टिक, ये शब्द यहाँ पे आना चाहिए था। You will come to know कि there is another thing, that is what, that is the revolt of Islam 1880, and this revolt of Islam, Islam जो है यह 1880 में आया है। an epic political poem, the revolt of Islam, an epic political poem written at Great Marlow in 1817 under the title Lone and Sintha, or the revolution of the Golden City। Here you have to remember 2 point। एक तो सबसे पहला जो शेली का प्रोज एसे है ऑन लव एंड लाइफ, ऑन लव एंड लाइफ, यह जो शेली का प्रोज एसे है यह किससे मिलता जुलता है, यह उनके अपने जो पहले वाली जो पोयम है एलास्टर, इस एलास्टर से बिल्कुल जो है उनका प्रोज का जो एसे है वह मिलता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, थॉमस लव पीकॉक ने इसकी टाइटल को कौन सा वर्ड यूज किया था, नार्सिस्टिक। एक वो आइडियोलॉजी है, यू हैव टू चेक इट, उस आइडियोलॉजी से क्या है, निगेटिव वर्ड है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर आप चेक करेंगे तो आपको और भी चीजें उससे रिलेटेड क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद एक और पोयम है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, 1880 में आता है, एंड एपिक पॉलिटिकल पोयम written at Great Marlow in 1870 under the title Laun and Cynthia, or the Revolution in the Golden City। उसके बाद यू कम टू नो कि देर इज व्हाट, देर इज जस्ट लीव दिस पॉइंट, अ विजन ऑफ द 19th century, you have to leave this point। come Prometheus Unbound, Prometheus Unbound 1818 1819 में आया है, published in 1820, combination of the lyric and the drama, ये चीज इंपॉर्टेंट है, combination of lyric and drama। what is Prometheus Unbound? it's the lyrical drama, an example of closet drama। स्टोरी ऑफ प्रोमीथियस, इसमें एक प्रोमीथियस कैरेक्टर है उसकी स्टोरी को लिया गया है, अ लिरिकल ड्रामा इन 4 acts। हाउ मेनी एक्ट्स, 4 acts, अ लिरिकल ड्रामा इन 4 acts। so Prometheus Unbound is what, it published in 1820, and a combination of the lyric and the drama, story of Prometheus, a lyrical drama in 4 acts। the next is the Cenci, the Cenci is also a play, it's a verse tragedy, it's a verse tragedy। So just I want to know 2 points, and what is that? I just want to know one thing ki what is Prometheus Unbound? And the story is about whom? The story is about Prometheus, and in how many acts it is? It's 4 acts. And what is the Cenci? A verse tragedy। Now you will come to know what is the revolt of Islam, an epic political poem। ठीक है, so these thing you find। वन थिंग यहाँ पे मैंने एक पोर्शन आपने देखा होगा बोल्ड में है लेकिन वो छूटा हुआ है, वो चीजें थोड़ा सा लाइन, थोड़ा सा वो फैक्ट जो है दूसरी पोयम का है,
एक यहाँ पे देखिएगा, देयर इज अ वर्क, लाउन एंड सिंथिया, LAON, लाउन एंड सिंथिया आर द रिवोल्यूशन इन द गोल्डन सिटी, अ विजन ऑफ द 19th सेंचुरी। यह जो किसको प्रेजेंट करता है, 19th सेंचुरी के विजन को। द पोयम इज शेलीज आइडियलाइज्ड एंड हाईली इडियोसिंक्रेटिक वर्जन ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन, ट्रांसपोज्ड टू एन ओरिएंटल सेटिंग, कंपोज्ड इन स्पेंसरियन स्टैंजा। स्पेंसरियन स्टैंजा में कितनी लाइनें होती हैं? या नाइन, 9 लाइन्स स्टैंजा। और 9 लाइन्स स्टैंजा का जो डिवीजन है कैसे किया गया है? नो, 9 लाइन्स स्टैंजा का जो डिवीजन है, 8 लाइन आयाम्बिक पेंटामीटर में, लास्ट की 9वीं लाइन आयाम्बिक हेक्सामीटर में। खासकर अगर शुभम जी हो, शुभम जी ने मुझे कहा था कि सर इस तरह की जो चीजें हैं शुरू करिएगा, तो मैं टीजीटी वाली क्लास में यही शुरू करूंगा। रेटरिक और प्रोसोडी से मैं दोबारा जब लिटरी टर्म पर मैं आऊंगा, तो लिटरी टर्म में पहले मैं रेटरिक और प्रोसोडी को लूंगा, तो वहीं से ही मैं, तो एक चीज वहां पे फिर आएगी। जो स्पेंसरियन स्टैंजा है, 9 लाइन्स स्टैंजा होता है, और उस 9 लाइन्स में शुरू की 8 लाइन आयाम्बिक पेंटामीटर में होती है, और जो लास्ट की लाइन होती है वो आयाम्बिक हेक्सामीटर में होती है। किस में होती है? आयाम्बिक हेक्सामीटर। हेक्सामीटर माने 6 फीट, 12 सिलेबल। पेंटा माने 5 फीट, 10 सिलेबल। और पोयम में किसको लेकर के बात की गई? फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, जैसा रिवोल्यूशनरी स्पिरिट यहाँ दिखाया गया है। और ये पोयम कितने कैंटोज में? 12 कैंटोज में है। कितने कैंटोज में है? 12 कैंटोज में, या स्पेंसरियन स्टैंजा में। नाउ द नेक्स्ट की प्लॉट इज टेकन फ्रॉम द ट्रू स्टोरी ऑफ बीट्रिस सेंसी। ये चीज जो है, बीट्रिस सेंसी, प्लॉट इसका कहां से लिया गया है? बीट्रिस के सेंसी से लिया गया है। हु हैज ट्राइड एंड एग्जीक्यूटेड फॉर द मर्डर ऑफ अ फादर, काउंट फ्रांसिस्को सेंसी, जो कि अपने फादर का मर्डर करती है, जो क्या नाम है? काउंट फ्रांसिस्को सेंसी, एट रोम, रोम में, इन 1599। शेली वॉज अट्रैक्टेड बाय द थीम्स ऑफ इंजेस्ट एंड एथिज्म। The play concentrates on the Iago like evil। जो प्ले है वह कंसेंट्रेट होता है Iago like evil of the count and the inner suffering of Beatrice। सो दीज थिंग्स यू फाइंड कि जो ये प्ले है, जो वर्ड्स ट्रेजिडी है, इसमें एक कहानी ली गई है। वो किसकी कहानी है? बीट्रिस सेंसी की है। और उस बेट्रिस सेंसी ने अपने फादर का मर्डर किया था। फादर का क्या नाम था? काउंट फ्रांसिस्को सेंसी, रोम में 1599 में। शेली इस चीज से काफी ज्यादा प्रभावित थी, इस सब्जेक्ट मैटर को लेकर, और खासकर उसका जो हिस्सा एथिज्म वाला है उसको जो है। और प्ले में जो है क्या है, सबसे ज्यादा इनर सफरिंग ऑफ बीट्रिस को, जो इयागो का जैसा कैरेक्टर है, जो शेक्सपियर ने तैयार किया था, कुछ वैसे ही कैरेक्टर यहाँ पे देखने को मिलता है। जूलियन एंड मेडालो 1818 में आया है। द मास्क ऑफ एनार्की 1819 में, पब्लिश्ड इन 1832, इंस्पायर्ड बाय द न्यूज ऑफ द मास एकर ऑफ पेट्रिलो, मास एकर ऑफ पीटरलो, वहां के मास एकर को लेकर के ये कंपोज किया गया था, मास्क ऑफ एनार्की। अ पोएम ऑफ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है, रिटन इन रिस्पांस टू द पीटरलू मैसेकर एट मैनचेस्टर इन अगस्त 1819। इसमें बस नहीं, ये चीजें आपको कुछ का नाम ध्यान में रखना है। जूलियन एंड मेडालो आपको नाम ध्यान में रखना है। द मास्क ऑफ एनार्की आपको ध्यान में रखना है। मास्क ऑफ एनार्की किससे रिलेटेड है? मासेकर से रिलेटेड। किसके मासेकर के? पीटर लू के मास। और यह एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, ये पोएम ऐसी है जिसमें पॉलिटिकल प्रोटेस्ट शो किया गया है। नेक्स्ट पोएम है द विच ऑफ एटलास 1820, पब्लिश्ड इन 1824। और इसके अलावा नेक्स्ट पोएम है एपी साइकिडियन 1821, एडोनाइस 1822। और एडोनाइस आपका क्या है? एलिजी। और यह किसके ऊपर है? ऑलरेडी किया, ऑन द डेथ ऑफ कीट्स, मॉडल ऑन द क्लासिक एलिजी, क्लासिक एलिजी के तरीके को फॉलो किया गया है। पीटर बेल द थर्ड, अ सैटिरिकल पोएम, written at Florence 1819, published in 1839। It is a parody of Wordsworth's poem of
Wordsworth poem of the same title. A second Peter Bell had already been published by Keats' friend J.H. Reynolds. पीटर बेल के नाम से एक और पोयम पब्लिश हुआ किया गया था, किसके द्वारा? कीट्स के फ्रेंड J.H. रेनाल्ड के द्वारा। तो मैं फिर से यहां से बता दूं, हम लोगों ने जो नाम बताया है, जूलियन एंड मैडालो, द मास्क ऑफ एनार्की। मास्क ऑफ एनार्की किससे रिलेटेड है? द मास्क ऑफ पीटर लूट से रिलेटेड है, एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है। उसके अलावा कुछ और पोयम है, द विच ऑफ एटलस है, एपिसाइकिडियन है, एडोनाइस है जो एलिजी है, इस पर बात हो चुकी है। पीटर बेल द थर्ड एक सैटिरिकल पोयम है, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। और पीटर बेल के ही तर्ज पर एक दूसरी पोयम लिखी गई है, पीटर बेल, और वो कौन लिखा हुआ? कीट्स के फ्रेंड J.H. रेनाल्ड ने। Next है The Witch of Atlas, a fantasy poem written in the summer of 1820. He is written from a solitary pilgrimage to Monte San Pellegrino, Lucca in Italy, published in 1824. 78 stanzas in ottava rima within the space of 3 days. द विच ऑफ एटलस के बारे में, यह एक तो फैंटेसी पोयम है, और दूसरा चीज जो है, यह 78 स्टैंजाज में है, और इसको जो है किसमें? अट्वा राइमा। अट्वा राइमा 8 लाइन्स स्टैंजा, दैट इज आल्सो नोन एज या दैट अट्वा राइमा 8 लाइन्स स्टैंजा। और इस अट्वा राइमा को यूज किया है एक और आदमी ने अपने ग्रेट वर्क में, दांते के डिवाइन कॉमेडी में। मेरी शेली डिसलाइक्ड द पोयम, मेरी शेली ने इस पोयम को बहुत ज्यादा लाइक नहीं किया था। अब उनके कुछ लिरिक्स हैं। टू अ स्काईलार्क, ओपनिंग लाइन्स है, हेल टू दी ब्लाइथ स्पिरिट, बर्ड दाउ नेवर वर्ड, एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ द सैडेस्ट थॉट, अभी सुबह में ही लिखवाया गया था। और इसका ओपनिंग क्या है? हेल टू दी ब्लाइथ स्पिरिट, बर्ड टू दाउ नेवर वर्ड, ये उसका ओपनिंग लाइन है। इसके अलावा द क्लाउड उनका रहा है, द इंडियन सीरेन, सीरेन क्या है? सीरेनेड म्यूजिक, when soft voices die on a faded violet, tonight world, oh life, oh time, lines written among the Euganean hills. All these things you find in उनका वर्क है, लेटर टू मेरिया Gisborne, young Parson, Richard Song, to the men of England, Sonnet, England 1819. So you find कि these are the words, जो एक important वर्क है, टू a स्काईलार्क, द क्लाउड भी उनका वर्क है, और ये important वर्क है, लेकिन इससे आपको कोई मतलब नहीं, जो दो नीचे है, द क्लाउड तो समझ में आता है, एक उनका वो है, स्काईलार्क है। तो इन दिस स्लाइड व्हाट डिड यू गेट? यू गॉट अबाउट कि इसके पहले की जो पोयम रही है, दैट वाज व्हाट? दैट वाज द पीटर बेल द थर्ड सैटिरिकल पोयम रही है, कितनी लाइन में रही है? All these things you find कि 78 stanzas, अट्वा राइमा within the space of 3 days. All these things, and here you find to a skylark, the cloud. Ode to the west wind, most remarkable ode written in a wood that skirts the Arno near Florence in October 1819, published in 1820. The ode is a passionate invocation to the spirit of the west wind, both destroyer and preserver. जो वेस्ट विंड है वह डिस्ट्रॉयर भी है, प्रिजर्वर भी है। और चीजें मैंने आपको लिखाया था किसमें है? टर्जा राइमा में, 3 लाइन्स स्टैंजा, इटालियन स्टैंजा वर्ड्स फॉर्म। और मैंने क्या बताया था? ऑटम इज द सिंबल ऑफ डाउनफॉल, स्प्रिंग इज द सिंबल ऑफ प्रोग्रेस। तो डिस्ट्रॉयर का मतलब ऑटम, प्रिजर्वर का मतलब स्प्रिंग। द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ है एन अनफिनिश्ड विजनरी पोयम रिटन इन द बे ऑफ लेविसी in summer 1822, published from Rough Drafts 1824, composed in terza rima, strongly influenced by Dante's Inferno। यह जो है दांते के इन्फर्नो से काफी प्रभावित रही है, यू विल कम टू नो। उसके अलावा कुछ और भी है, जैसे जास्ट्रोजिट सेंट अरविन, टू वॉइसेस रोमांस रिटन व्हेन ही वाज एट स्कूल, बहुत ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं रहा है। द डिफेंस ऑफ पोइट्री 1821 में, पब्लिश 1824, एंड एसे, क्या क्रिटिकल एसे रिटन एट पीसा, ये चीज पूछा जा चुका है, रिटन एट पीसा, फर्स्ट पब्लिश 1840। इट वाज बिगन एज अ लाइट हार्टेड रिप्लाई टू हिज फ्रेंड पीकॉक्स मैगजीन आर्टिकल द 4 एजेस ऑफ पोइट्री। ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कि यह किसके अगेंस्ट में लिखा गया है? थॉमस पीकॉक का एक आर्टिकल आया था, द 4 एजेस ऑफ पोइट्री, उसके खिलाफ यह जो लिखा गया, जिसका क्या नाम है? द डिफेंस ऑफ पोइट्री, पब्लिश 1840, एंड ऐसे
written at Pisa 1821, first published 1840. It was begun as a light-hearted reply to his friend Peacock's magazine article The Four Ages of Poetry. A philosophical view of reform, a political essay written at Pisa 1820, not published until 1920, intended as an instructive and readable octave booklet. This was Shelley's most mature political statement about liberty, revolution and freedom. एक एसे है और यह एसे किसके बारे में? लिबर्टी के बारे में, रिवॉल्यूशन के बारे में एंड रिफॉर्म के बारे में। द एजाइजेंस अनफिनिश्ड नॉवेल, ये एक इंपॉर्टेंट, उनका एक अनफिनिश्ड नॉवेल भी था, नॉवेला था। द एजाइजेंस रिफ्लेक्ट देयर मेरी गॉडविन टुगेदर विद 15-year-old स्टेप सिस्टर जेन क्लायरी क्लेयरमॉन्ट, उनको लेकर के ड्रीमी ट्रेवल्स थ्रू पोस्ट वार फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी। सो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि द एजाइजेंस उनका एक अनफिनिश्ड नॉवेला है जिसमें उन्होंने मेरी गार्डविन को लेकर के और जो है उसकी 15-year-old स्टेप सिस्टर जेन को लेकर के उन्होंने बात किया है, और जो पोस्ट वार फ्रांस है, स्विट्जरलैंड और जर्मनी है, वहां के एक्सपीरियंस को उन्होंने साझा किया। यह अनफिनिश्ड नॉवेला है। फिलोसफिकल व्यू क्या है उनका? सबसे पॉपुलर ऐसे रहा जिसमें उन्होंने लिबर्टी, रिवॉल्यूशन और रिफॉर्म को लेकर के बात किया है। इन दोनों को लेकर किसी को कोई प्रॉब्लम? इन दोनों चीजों को लेकर के किसी को कोई प्रॉब्लम? जितना बता रहे हैं आपको इतने पे ही कंसेंट्रेट करना है। फिलोसफिकल व्यू ऑफ रिफॉर्म क्या है? पॉलिटिकल ऐसे है। यह ऐसे किसके बारे में है? यह ऐसे शेली की उस विचार को दर्शाता है जिसमें लिबर्टी, रिवॉल्यूशन और रिफॉर्म को लेकर के उन्होंने बात किया हुआ है। उसके बाद उनका एक नॉवेल है लास्ट में, द एजाइजेंस, जो 1814 में आया है। यह अनफिनिश्ड नॉवेला है। इसमें उन्होंने किसको लेकर बात किया? मेरी गॉडविन और उनकी सिस्टर जेन को लेकर के बात किया है। और क्या चीज दिखाया गया? पोस्ट वार एक्सपीरियंसेस, फ्रांस में क्या हालात थे, स्विट्जरलैंड में क्या थे, जर्मनी में क्या थे। मुझे लगता है कि मैं स्लाइड फिर से बैक कर रहा हूं आपको इसी पैटर्न पे समझाने के लिए। फिर से किसी को कोई दिक्कत? नो। उसके बाद जी, उसके बाद आपने देखा कि द डिफेंस ऑफ पोइट्री उनका है। डिफेंस ऑफ पोइट्री से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। कब आया है? यह एक क्रिटिकल ऐसे है, 1821 में आया है। यह एन ऐसे क्रिटिकल ऐसे है। इस ऐसे में, और यह ऐसे कब पब्लिश हुआ? 1820 में। पीसा में उन्होंने इसको लिखा था, 1840 में पब्लिश हुआ है। और इस ऐसे की सबसे बड़ी बात यह है कि यह ऐसे टॉमस पीकॉक नाम के एक आदमी थे जिन्होंने क्या लिखा था? द फोर एजेस ऑफ पोइट्री एक ऐसे लिखा था। यह ऐसे उनके खिलाफ लिखा गया है। उस ऐसे में उन्होंने पोएट की, लिटरेचर की आलोचना की थी। तो पोएट, पोइट्री और लिटरेचर के डिफेंस में और टॉमस पीकॉक को उत्तर देने के लिए, उनको समझाने के लिए उन्होंने यह ऐसे लिखा था। बाकी आप इस पूरे के पूरे उसमें जो भी देख रहे हैं, केवल एक चीज इंपॉर्टेंट है, ओड टू द वेस्ट विंड। वो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ओड टू द वेस्ट विंड उनका इंपॉर्टेंट पोयम है, सभी लोगों ने पढ़ा भी है। और ये बहुत बेसिक पॉइंट है कि जब भी आप एग्जामिनेशन में अपियर हो तो एक आध बार आप उसको जरूर अपने आप तरफ से भी देख लें कि ओड टू द वेस्ट विंड रिमार्केबल ओड है। और इस ऊड, यह जो पोयम है, यह कहाँ पे लिखा गया था? द आर्नो वुड के पास, द आर्नो नियर फ्लोरेंस। ये चीज कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन ठीक है, इंफॉर्मेशन है, यहाँ आप देख रहे हैं। इसमें दो चीजें दिखाई गई कि ओड टू द जो वेस्ट विंड है उसको पर्सोनिफाइड किया गया है, और वह डिस्ट्रॉयर भी है, प्रिजर्वर भी है। वह आटम को जन्म देती है, आटम चीजों को डिस्ट्रॉय करती है। वह स्प्रिंग को जन्म देती है, स्प्रिंग चीजों को प्रिजर्व करती है। उसके बाद है द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ है। यह अनफिनिश्ड विजनरी पोयम है। ट्रिम्फ ऑफ लाइफ क्या है? अनफिनिश्ड विजनरी पोयम है। और ये पोयम जो है किसमें लिखी गई है? टर्जा राइमा में लिखा गया है। यह पोयम किससे प्रभावित है? दांतेस के इन्फर्नो से और पेट्रास के ट्रायोन्फी से प्रभावित रहा है। उसके बाद आप देखते हैं कि जास्ट्रोजी सेंट इरवाइन टू बाइस रोमांस है। कोई इसका मतलब नहीं, ऐसा नहीं कि कहीं भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आया हुआ, लेकिन है, ठीक है, आप नाम सुने रहिएगा। जास्ट्रोजी सेंट इरवाइन, उनके बारे में इस तरह की कोई चीज है जो कि बहुत ऐसा नहीं है। उसके पहले जो है मैंने आपको बताया था स्काईलार के बारे में कि यह पोयम की शुरुआत इस लाइन से होती, हेल टू दी, स्वागत मैं करता हूँ, ब्लाइथ स्प्रिट, वाइल्ड स्प्रिट, बर्ड, दैट्स अ बर्ड। और वो कौन सी बर्ड है? स्काईलार बर्ड है।
और उसके बाद उसकी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोस्त, एक कई बार पूछा जा चुका है यही चीजें। एक उनका द क्लाउड नाम का रहा है, इसको आप देखते हैं। बाकी उनके अपने वर्क है जो मेरी नजर में बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके पहले जो मैंने आपको बताया हुआ था, द विच ऑफ एटलस है, फैंटेसी पोयम है, 78 स्टैंजा में है, अटवा राइमा में है, विद इन द स्पेस ऑफ 3 डे उन्होंने इसको लिखा, मेरी शैली ने इसको डिसलाइक किया। मेरी शैली के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था कि डाटर ऑफ विलियम गॉडविन, विद हुम टी एस एलियट एलोन। तो आई हैव डन दीज थिंग्स। मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। मुझे लगता है कि जो आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा एक चीज मैं ये भी बता दूं, ये जितना आपने डिस्कस किया है, ऐसा नहीं कि ये मैटर सफिशियंट है। ये चीजें आपको एक इंफॉर्मेशन बहुत डीप में जाकर के चीजें मिल जा रही हैं, लेकिन बट वेट की 4 और 5 डेज में जब बुक आ जाएगी, तो उसमें जो मैटर होगा वो इससे अलग होगा। ये चीजें नहीं जो यहाँ पर है वो बुक में होगा, बुक में कुछ चीजें आपको अलग मिलेंगी। तो आपको इस मैटर के साथ वो बुक का भी सेल्फ स्टडी करना, सारी बातें यही रहेंगी, हो सकता है एक एक दो दो पॉइंट हर पोयम में कुछ आपको अलग मिले। So I can't take any question or any piece of advice. Just I have to leave because I have to go somewhere. Anyhow, I could arrange this class, and if I get time, so I will interact with you in the evening. Otherwise, don't wait for me.